Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are covering the monthly magazines of Vision IAS on this platform. And last 1 week, I was not able to upload the videos. I really apologize for that. My throat condition was not at all good, and I was not able to speak. So that is the reason I was not able to upload the videos. So we really apologize for that. And here we restart our journey with a full energy, with the same continuity and the same pace. So basically, the thing which I want to share today is that the PT365 is already uploaded on the website of the Vision IAS. So basically, firstly, on the priority, we will be covering the PT365 for Vision IAS because obviously that is our priority because of the examinations. Hardly 2-3 months are left for your prelims. And once we are done with the PT, we will focus on the previous magazines if time will permit us. So here we start with the first PT which is uploaded is regarding the polity section. If I talk about the first thing that they have talked here is the basic related to the topics which is related to the constitution. That is the basic structure doctrine, abrogation of Article 370, National Capital Territory of Delhi, preventive detention. Then they have talked about the personality rights, hate speech, Places of Worship Act 1991, and other important news. So this will be the priority in our today's video, and then we'll move towards the next topic. So beginning with the first topic that talks about the basic structure of doctrine. तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें आप सभी से रिक्वेस्ट है that प्लीज आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम लोग इतने मोटिवेट हो जाए कि हमारा जो स्पीड है वो भी डबल हो जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं या फिर वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि हमें सपोर्ट मिले। और जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे हम भी आपको उतना सपोर्ट करेंगे। ठीक है, so please subscribe our channel. Now let us start with the first thing, that is the basic structure doctrine. To understand this basic structure of doctrine, let's take a bit of background information. So when I talk about the background, what I want to say is we know that part 3 of the Indian Constitution deals with the fundamental right. So when I talk about the fundamental right, so these are some basic right which protects a citizen or a non-citizen from the arbitrary actions of the government. What I want to say, for example, this is your state or the government, which is very powerful, and on the other hand, the people are there or the citizens are there. So here I want to say that state is very powerful because they have the power to make the laws. So what if they use the arbitrary the powers against the citizens? So to protect this arbitrary actions of the state against the citizen, this fundamental rights was inculcated, was added in the constitution of the India to protect the citizens from the arbitrary actions of the government. So this was the objective of the fundamental right. That means that if your fundamental rights are violated, you can go to the court. That means the fundamental rights are justiciable in the nature. The fundamental rights are enforceable in the nature. And also, these fundamental rights are what? Protected and guaranteed by the Constitution. Remember Article 32, that is the constitutional remedies given to the Supreme Court, the High Court. So that means your fundamental rights cannot be violated. They are justiciable, they are enforceable, they are guaranteed by the Constitution. But they are not so sacrosanct that it is absolute in nature. No. Certain amount of reasonable restrictions could be given on that. So this is the background of the fundamental right. But why we are talking about this? So when I talk about the fundamental right, it covers the Article 12 to Article 35. Okay, so basically from Article 12 to Article 35 talks about the fundamental right, and in this Article 13 says that any law
which is made before 26th of January 1915. I repeat, कोई भी लॉ जो 26 जनवरी 1950 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट डेट है, लागू होने की डेट है, दैट इज द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ जनवरी 1950। अगर कोई भी लॉ इससे पहले बना है और अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो लॉ जो है वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी लॉ 26 जनवरी 1950 के बाद बना रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब आप वो लॉ बना ही नहीं सकते हो जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई लॉ बन रखा है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड 26 जनवरी 1950 दैट इज द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में आप ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकते जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो ये हुआ आपके पास आर्टिकल 13। दैट मीन्स ये आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। मतलब कोई अगर ऐसा लॉ आपने बनाया जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे आता है वो ये है कि मान लो कि कोई लॉ है, मान लो, ध्यान से सुनिएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आया था कि मान लो कि देयर इज अ लॉ और ये फंडामेंटल राइट को बिल्कुल भी वायलेट नहीं करता है, राइट। सो बेसिकली ये लॉ सही बना हुआ है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ डील करता है उसके साथ इस लॉ को अमेंड कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, तो बेसिकली ये जो लॉ है इसको अब मैंने अमेंड कर दिया, यानी कि ये अमेंड हो चुका है। लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, अब ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो क्या ये करना पॉसिबल है या फिर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है करना? तो क्या सवाल उठा था कि अगर कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हो आप तो क्या उसको लॉ मानेंगे? क्योंकि हमने क्या बोला कि जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए, तो क्या यहाँ पे अमेंडेड लॉ को मैं लॉ मानूंगी अंडर आर्टिकल 13? क्योंकि वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसके ऊपर पूरा जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो बना हुआ है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हुआ क्या था, हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो गवर्नमेंट है, वो एक एक्ट लेके आई थी, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी और उस एक्ट के जरिए उसने जो फंडामेंटल राइट है उसको अमेंड किया। दैट इज वहां पे आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी उस वक्त फंडामेंटल राइट हुआ करती थी और यहाँ पे अमेंडमेंट किया जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी जो है कटल हो रही थी या फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो वायलेट हो रही थी जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ से सवाल उठा कि क्या आप किसी भी लॉ को अमेंड कर सकते हो ताकि उसके बाद क्या वो लॉ कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से पूरा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जर्नी है वो स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई ये देखते हैं। 1950 के अंदर AK गोपालन का केस आया था, 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद केस आया था और 1965 में सज्जन सिंह केस आया था। इन तीनों केस में जो पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम बताया गया। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि हाँ, पार्लियामेंट किसी भी लॉ को अमेंड कर सकती है चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, राइट। इन तीनों केसेस के अंदर दैट इज AK गोपालन केस ऑफ 1950, शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 एंड सज्जन सिंह केस ऑफ 1965, इन तीनों केस के अंदर ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी लॉ को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 और वहां पे वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। क्योंकि अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं मानेंगे हम आर्टिकल 30 में, क्योंकि वहां पे नहीं लिखा हुआ है, कायदे से वहां पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर आता है 1967 का गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ना जी ना, आर्टिकल 368 जो है या पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर देता ही नहीं, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते, तो आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर ही नहीं सकते, गलत है ये। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है उसको सैक्रोसैंक्ट इंपॉर्टेंट बताया गया। लेकिन फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट 1971 का केस। 1971 में क्या हुआ देखो, एक तरफ पार्लियामेंट बोल रही, एक तरफ जुडिशरी, दोनों के बीच में टसल।
1971 में क्या हुआ, दैट पार्लियामेंट ने क्या किया, दो अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। पहला 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। सो बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या किया, खुद ही एक एक्ट लेके आ गई और खुद ने बोल दिया कि पार्लियामेंट अगर कोई भी चीज अमेंड करती है तो वो अमेंडमेंट को हम आर्टिकल 13 के अंदर लॉ नहीं मानेंगे। तो मतलब अमेंडमेंट के बाद में अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट को लॉ नहीं मानता। और इसी का सेक्शन 2 बोलता है, दैट इज कर्टेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी विद द ड्यू कंपनसेशन। की मतलब आर्टिकल 21 जो कि सॉरी जो राइट टू प्रॉपर्टी, इस वक्त आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, उसको हम कर्टल कर सकते हैं, हम उसका कंपनसेशन देंगे। सेक्शन 3, that is the precedence of DPSP over the fundamental right and take away the scope of judicial review। तो यहाँ से जो आपके पास पार्लियामेंट है, ये दो एक्ट लेके आई जिसमें जुडिशियल रिव्यू का पूरा सिस्टम उन्होंने इन चीजों पे हटा दिया और साफ साफ बोला कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है अमेंड करके तो वो आर्टिकल 13 में लॉ के अंदर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो मतलब जो फंडामेंटल राइट्स थे सिटीजन की वो लिमिटेड है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर आता है 1973 का केशव नंदा भारती केस। केशव नंदा भारती केस ने कहा पार्लियामेंट को कि भाई ठीक है, करना अमेंड करो, मनमानी करनी है आप एक्ट लेके आ रहे हो करो, जो अमेंड करना है करो, फंडामेंटल राइट अमेंड करना है करो, डीपीएस के अमेंड करना है करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी। तो यहाँ पे एक नया शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट लेके आई, बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर सवाल आता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है, नहीं, ये इवॉल्व हुआ है विद द वेरियस जजमेंट। और इसका जो जजमेंट था केशव नंदा भारती केस 1973, इसके अंदर ये जो टर्म आया था बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको जो मर्जी हो वो अमेंड करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हिट नहीं होना चाहिए। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिफाइन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, बस लिस्ट दे दी कि ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, आप कितना भी अपना दिमाग लगा लो इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। ठीक है जी, तो बेसिकली केशव नंदा भारती केस में क्या हुआ, इट डेल्ट विद अ पिटीशन अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड by the Kerala government under the Kerala Land Reform 1963 as a violation of the fundamental right 25, 26 and 31। तो जैसे कि हमने कहा, इसमें क्या हुआ कि जो केरला की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कंपल्सरी एक्विजिशन किया लैंड का, मतलब प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन किया, और उस वक्त एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि आप फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहे हो, और साथ में 25, 26 और 31 जो फंडामेंटल राइट है वो आपकी वायलेट हो रही थी। लेकिन पार्लियामेंट तो भाई लग रखी थी, 24 और 25 अमेंडमेंट लेके आई कि नहीं हम कर सकते हैं, अमेंड करने के बाद आर्टिकल 13 में यहाँ पे लॉ नहीं आएगा, आज जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो इसके चलते हुए केशव नंदा भारती केस आया और इसका आउटकम क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो निकल के आता है। इसने बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है बिल्कुल वैलिड है, पार्लियामेंट में सही बोला है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ को अमेंड करता है तो वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ के अंदर नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ऐसे बोला है कि आप वो चीजें अमेंड नहीं कर सकोगे जिससे आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स the parliament had the power to amend any or all the provision to the constitution including the fundamental rights, लेकिन that should not either damage or destroy the essential features which is the basic structure of the constitution। मतलब जो गोलकनाथ केस था 1967 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अनलिमिटेड and that fundamental right guaranteed under the constitution could not be abrogated or abridged by the constitutional amendment। तो यहाँ से तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, इससे क्या बोला कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ठीक है लेकिन आप जुडिशियल रिव्यू नहीं हटा सकते, वही वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू तो होके ही रहेगा। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इन्होंने बोल दिया कि भाई सोवरेनिटी होगा इंडिया का,
असेंशियल फीचर्स है, तो ये जो चीज है यहाँ पे आप लिस्ट है उसको देख लीजिएगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं। इट होल्ड्स दैट सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप अमेंड नहीं कर सकते, आप एब्रोगेट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, there is nowhere mention in the constitution basic structure। बेसिक स्ट्रक्चर वेरियस जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। क्लियर? नाउ significance of the doctrine, it check on the power of the parliament to amend the constitution। मतलब पार्लियामेंट को अगर हम अनलिमिटेड पावर दे दें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मन मर्जी अमेंड कर दो, तो ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नया बना देगा। तो बेसिकली इस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन से हम पावर लगा रहे हैं, उसके लिमिटेशन लगा रहे हैं, उसके थोड़े से हाथ बांध रहे हैं, है ना। मतलब फ्रीडम के साथ, लिबर्टी के साथ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तो उनको देना पड़ेगा। नाउ ensures that the constitution remains a living document। It laid down several principles that have become the bedrock of the constitutional law in the India, जैसे कि rule of law, जैसे कि separation of powers। Now let's talk about the next thing, that is independence of the district judiciary, which comes as a part of your basic structure। ठीक है, सो यहाँ पे बात करेंगे इंडिपेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर। पहली चीज, इंडिया के अंदर जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। जब लोअर कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जजेस कोर्ट। अब वो साइड, वो सारे कोर्ट जो कि सिविल केसेस के साथ डील करते हैं, उनको हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट जजेस कोर्ट। और वो कोर्ट जो कि क्रिमिनल केसेस के साथ डील करते हैं, वी से दैट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो जाएगा और इसको मुंसिफ कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी अभी हम समझ के आए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे उस लिस्ट में एक और चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह देते हैं कि ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका इंडिपेंडेंट होना वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और इसी के साथ उन्होंने और क्या बोला, इट इंटीग्रेशन इन द टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विस कंडीशंस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, द सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिफाइड जुडिशरी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करते हैं, तो ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, फिर अलग अलग स्टेट्स में आपके पास हाई कोर्ट है, फॉर एग्जांपल राजस्थान है, वहां पे आपके पास जोधपुर का हाई कोर्ट है। फिर वहां पे अगर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, jurisdiction and the nomenclature, appointment, posting and the promotion। Now coming to the next topic, that is the abrogation of the article 370। देखो उसको थोड़ा सा ना, बिकॉज ये बहुत बार हो चुका है, मतलब आर्टिकल 370 से एंड नंबर ऑफ टाइम डिस्कस, तो थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में लेंगे। यू ऑल नो वी व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपके पास जो इंडिया की पूरी टेरिटरी डिवाइडेड थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के अंदर। पार्ट डी में आपकी सिर्फ एक अंडमान और निकोबार जो है टेरिटरी हुई थी। बट फिर क्या हुआ, स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की बात करी गई, इंडिया की टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज करने की जो बात है वो करी गई, जिसमें पार्ट सी को टोटली हटा दिया गया, पार्ट ए और बी को मिक्स किया गया, ऐसा कुछ यहाँ पे किया गया। और बहुत सारी कमीशन भी आई थी, फॉर एग्जाम्पल द फजल अली कमीशन जो है वो आई थी, जिन्होंने बोला कि मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे क्या हमको स्टेट को एडजस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आपके पास जेवीपी कमेटी जो है वो आई थी। तो इस तरह से बहुत सारी कमिटीज आई थी और स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो बेसिकली जब आप सारी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो तीन ऐसी रियासतें थी या फिर प्रिंसली स्टेट थी जो कि मिल नहीं रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि भाई हम तो नहीं आएंगे, हम अकेले रहेंगे। तो उसमें से एक जो था वो जम्मू एंड कश्मीर भी था, और जम्मू एंड कश्मीर को फाइनली इंडिया के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू जोड़ा गया। मतलब कि ये इंडिया का पार्ट है और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इनको थोड़ी सी स्पेशल जो प्रोविजंस है वो दिए जाएंगे, थोड़ा सा इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्पेशल तरीके से होगा, ठीक है। और इसको हमने जो है आपके पास 2019 में जो है हटा दिया गया। So Constitution Bench of the Supreme Court
रिसेंटली तो बेसिकली 2019 में जब इसको हटाया गया तो उससे फिर से सवाल खड़े हुए कि क्या वो सही तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था। तो उस चीज के लिए यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को मंजूरी दे दी है, वैलिडिटी दे दी गई है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट 2019 डिसीजन टू रिपील द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। मतलब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का ये जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिपील कर दिया गया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी यहाँ पे दे दी गई। तो हुआ क्या वो देखते हैं। 5 अगस्त 2019 ये एक ऐतिहासिक घटना आप बोल सकते हो कि हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट है उन्होंने एक ऑर्डर प्रोमलगेट किया और कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 which stated that the provisions of Indian Constitution are applicable in the state। बहुत ही ऐतिहासिक स्टेटमेंट कि अब से 5 अगस्त 2019 से भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हर एक प्रोविजन जम्मू कश्मीर पे भी लगेगा ठीक उसी तरह से जैसे कि बाकी स्टेट पे लगता है। मतलब जो स्पेशल स्टेटस है उसको हटा दिया गया। Now, the Parliament also enacted Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019। अब उसी के साथ यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आया जिसके अंदर ये जो स्टेट है उसको बाइफरकेट किया, दो यूनियन टेरिटरी बनाई, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी। तो बेसिकली पेटिशनर्स ने क्या किया, चैलेंज किया कि जिस तरीके से ये हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसका अपहेल्ड दिया है, कंफर्मेशन दिया कि नो इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। तो व्हाट वाज द जजमेंट दैट अपहोल्डिंग द presidential proclamations of August 2019, the Supreme Court held that Jammu and Kashmir did not retain any element of sovereignty after it acceded to India in 1947। और ये जो प्रोविजन थे जो कि उनका स्पेशल प्रोविजन थे वो टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन, ठीक है। Then the court held that the parliament may by law form a new state by separation of a territory from any state or by uniting two or more states। तो बेसिकली इस पूरी रामायण को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 which talks about the union territory। इसके अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया यानी कि जो भारत है उसके अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज आती है, यानी कि कौन सी आएगी यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर। यहाँ पे आएगा आपके पास टेरिटरीज जो है स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज या फिर इन फ्यूचर जो भी आप एक्वायर कर सकते हो। फिर आता है आर्टिकल 2 और 3 के बारे में। यहाँ पे हमारा फोकस है आर्टिकल 3 के बारे में। इट प्रोवाइड्स दैट कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो कोई नया स्टेट बना सकता है। ऑलरेडी जो स्टेट के जो एरिया है उसको एल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज या फिर नेम्स जो है उसको चेंज कर सकता है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट के। और ये जो प्रोविजंस है ये पार्लियामेंट के आप किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंडेशन देंगे एंड देन यू कैन इनिशिएट इट। अगर ये जो बिल अफेक्ट करता है किसी भी स्टेट के एरिया के अंदर, बाउंड्री के अंदर, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे व्यूज देने के लिए। लेकिन वो व्यूज एक्सेप्ट हो या बाइंडिंग हो ये जरूरी नहीं होता है। ये क्लियर है। अब बात करते हैं, ये प्लीज याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि आप आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को वो एल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और जिस स्टेट के ऊपर वो असर पड़ रहा है उस स्टेट को वो भेजा जाता है, लेकिन सिर्फ व्यूज देने के लिए भेजा जाता है, वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। Now next thing or the next topic here is the National Capital Territory of Delhi Amendment Act। Again, जब आप यूनियन टेरिटरीज पढ़ते हो तो उसमें दिल्ली को एक स्पेशल दर्जा मिला है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक चीज है ना वो समझ लेते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो चल कैसे रही है या फिर कैसे काम करती है, और फिर हम इसके ऊपर आएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला, सबसे पहले दिल्ली का इवोल्यूशन कैसे हुआ। 1951 Delhi made a Part C state। What is Part C state? I mentioned you that Britishers जब यहाँ पे थे उस वक्त हमारे पास जब वो चले गए थे और फाइनली देश आजाद हो रहा था तो हमारी कंडीशन क्या थी। There were Part A,
बी, सी और डी। तो इंडिया की जो टेरिटरीज थी या फिर जो स्टेट्स थे वो इस तरह से डिवाइडेड थे। दैट डी के अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड था, ए बी और सी के अंदर जो कमिश्नर्स के अंडर थी वो जगह थी, फिर आपके पास प्रिंसली स्टेट्स थे, और फिर आपके पास जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो थी। इस तरह से चार कैटेगरीज में डिवाइडेड था। तो जो ये पार्ट सी है वहां पे दिल्ली था। 1952 यानी कि एक साल बाद में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनाया गया और वहां पे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया गया। 1956 के अंदर अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्ट दिल्ली इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। और 1966 के अंदर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। और 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वो बोलते हैं दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली। और 2021 में एक अमेंडमेंट एक्ट आता है। तो ये तो उसका इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी गवर्नेंस मॉडल की। ये एक यूनियन टेरिटरी है। जैसे आप पढ़ते हो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, इसके अंदर दिल्ली को हमने यूनियन टेरिटरी की बात करी है, मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे सेंटर का। तो दिल्ली को अंडर आर्टिकल 239 बोला गया कि एक यूनियन टेरिटरी है। इट स्टेट्स दैट यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली होता क्या है, कोई भी टेरिटरी अगर यूनियन टेरिटरी होती है तो प्रेसिडेंट उसको डायरेक्ट गवर्न करता है और अपना एजेंट वहां पे छोड़ देता है जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेसिकली कोई भी यूनियन टेरिटरी है उसको डायरेक्ट प्रेसिडेंट गवर्न करता है विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्ट with the help of an administrator। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। अब इसको स्पेशल स्टेटस, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला है। अब जो स्पेशल स्टेटस है वो कैसा है, एस बालकृष्णन कमेटी। तो बेसिकली एस बालकृष्णन कमेटी उनके रिकमेंडेशंस जो थे उनको फॉलो किया गया और 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1991 में। और यहाँ पे दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया और यहाँ पे 239 ए आर्टिकल इंसर्ट किया गया और दिल्ली को यूटी बनाया विद लेजिस्लेचर और वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थे और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम दिया गया। तो बेसिकली ये दिल्ली के बारे में हुआ। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जो है 2023 उसको रेटिफिकेशन एसेट मिल गया है प्रेसिडेंट से, यानी कि भाई ये एक्ट बन गया। तो व्हाट इज दिस एनसीसीएसए? तो यहाँ पे एक नया एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाया गया है कि ये जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन या फिर बॉडी है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको रिकमेंडेशन देगा रिगार्डिंग व्हाट, कि कोई भी पोस्टिंग अगर ट्रांसफर होता है उस पर विजिलेंस रखना होता है या कोई भी इंसिडेंटल मैटर्स, इन सबको की चलते हुए कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनको रिकमेंडेशन देगा। राइट, अब इसमें कौन कौन होंगे, सीएम ऑफ दिल्ली, the principal home secretary of Delhi government and chief secretary of the Delhi. So this is about the amendment over here. Now coming to the next part, that is preventive detention. Again, it is part of the fundamental right. So when we talk about the fundamental right, it covers from article 12 to article 35. So when we talk about the article 22, तो ये आपके पास कम से कम इसमें 7 प्रोविजंस है। ये आपको डिटेंशन के बारे में बताता है। इसके अंदर बात होती है डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब दो तरीके का डिटेंशन है, एक प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव के अंदर तो होता है कि आपने भाई कोई क्राइम किया है, आपके ऊपर पूरा प्रोसीडिंग वगैरह चला है, उसके बाद में आपको डिटेन किया है, जेल लेके जा रहे हैं और प्रोसेस हो रहा है। प्रिवेंटिव में होता है कि आपके ऊपर शक है और उसके पहले ही मेरे पास कुछ एविडेंसेस नहीं है या फिर मेरे पास शक है या फिर एविडेंसेस है, मुझे लगता है कि ये मर्डर आपने किया है या फिर ये टेररिस्ट अटैक आपने किया है, तो पहले ही जो है आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात हुई है दैट सुप्रीम कोर्ट व्हाइल सेटिंग असाइड a detention order observed by preventive detention laws are colonial legacy and they must be used only in the rarest of the rarest case। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये कॉलोनियल लीगेसी से चलता आ रहा है, ये ब्रिटिश के टाइम का माइंडसेट है, इसको हमको यूज एकदम रेयरेस्ट केस में करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी भी किसी को भी उठा लो और मिसयूज कर रहे हो।
तो अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब है? दैट मीन्स किसी भी पर्सन का डिटेंशन विदाउट अ ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ एक अप्रहेंशन है, आपको एक रीजनेबल अप्रहेंशन है कि हाँ ये डेंजरस एक्टिविटी कर सकता है जो कि पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरनाक है, डेंजरस है, तो आप एक सिर्फ अप्रहेंशन, एक शक की बेसिस पे आप उसको डिटेन कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट अंडर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता, तो पहले ना थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये है आपके पास आर्टिकल 22, ये बात करता है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, सॉरी पहले यहाँ पे हम बोलते हैं ये बात करता है प्यूनेटिव डिटेंशन के बारे में, और फिर ये बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। अब प्यूनेटिव में क्या होता है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों कवर है, मतलब आपको क्यों अरेस्ट किया गया है ये बताओ, मेरे सामने मेरे एक लीगल जो पर्सन है जो मेरा केस लड़ सकता है वो बताओ, और 24 आवर्स से ज्यादा आप मुझे नहीं रख सकते जेल के अंदर, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, जब अगर आपने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया होगा। तो ये सब पावर्स जो है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2 में दिए जाते हैं अगर आपको प्यूनिटिवली डिटेन किया गया है। लेकिन आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 बोलता है कि ये जो ऊपर वाली प्रोटेक्शन है जो कि 1 और 2 क्लॉज में मिले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉज 1 2 3 4 5 6, ये बहुत ही स्टेटिक है, उसको आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी राइट, एंड देन हेट स्पीच, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और फिर छोटे मोटे यहाँ पे टॉपिक्स और वीडियो आज का खत्म करते हैं। तो पर्सनैलिटी राइट्स की बात करते हैं। तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है उन्होंने अभी बोला कि फेमस बॉलीवुड एक्टर्स की जो पर्सनैलिटी राइट है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, गारंटी देते हैं फ्रॉम द मिसयूज बाय द थर्ड पार्टी। तो भाई ये पर्सनैलिटी राइट क्या है? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सुने, लीगल राइट सुने, फंडामेंटल राइट सुने, ये पर्सनैलिटी राइट क्या है? तो बेसिकली ये वो राइट होते हैं जिससे किसी भी इंसान का पर्सनैलिटी जो है यानी कि अंडर द राइट टू प्राइवेसी या फिर प्रॉपर्टी जो है इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, मतलब नाम, वॉइस, सिग्नेचर, किसी भी तरह से जो कि आपकी पर्सनैलिटी जो है कि आपने किसी के साइन कॉपी कर रहे हो, वॉइस कॉपी कर रहे हो, डीफेक बना रहे हो, सो दिस कम्स अंडर पर्सनैलिटी राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के थ्रू आप इसको कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेट स्पीच के बारे में, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है that recently Supreme Court stressed the need for the stakeholders to find a long-term solution to the problem of hate speech. हेट स्पीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के लॉ के अंदर डिफाइन नहीं करा गया है कि हेट स्पीच क्या होता है। फिर भी जनरली हेट स्पीच उसको बोला जाता है जिससे आप किसी को इंसाइट करते हो, हेट्रेड के थ्रू उकसाते हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जानबूझ के आप रिलीजियस की बेसिस पे कुछ बोल रहे हो और सिर्फ दंगे फसाद हो रहे हैं। क्लियर? तो ये सब है। तो क्या अभी इनका रेगुलेशन कहाँ है? तो सबसे पहली बात आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात करता है, वहां पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर इसको कर्टल किया गया है। 19 क्लॉज 2 क्या बोलता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और फिर आपके पास जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, इनको हटा के ये जो नए कानून आया है, फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता 2023, इनके अंदर भी ये प्रोटेक्टेड है। सेक्शन 196 क्लॉज 1 जो है वो आपको पेनल्टी देने की बात करता है, प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस। सेक्शन 299 ये भी आपको अगर डेलिबरेटली आपने मैलिशियस एक्ट किया तो पनिशमेंट की बात करता है सिमिलरली। और रोपा 1951 दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंदर भी पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट कम्स योर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। The Supreme Court observed that it cannot order a blanket stay on the Worship Act, please. अब देखो पहले ये एक्ट समझते, ठीक है। The act declares that the religious character of a place of worship shall continue to be the same as it was on August 15, 1947. मतलब कोई भी अगर प्लेस है या फिर जगह है उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो वही होना चाहिए जो कि 15 अगस्त 1947 के समय था। It says that no person shall convert any place of worship
of any religious denomination into one of a different denomination or the section. इसके बाद आप कुछ भी ये नहीं बदलोगे कि पहले यहाँ पे ये था, पहले यहाँ शिवलिंग था, पहले यहाँ पे ये फलाना था. 15 अगस्त 1947 तक जो था वो था, वही सेम है. It also imposes a positive obligation on the state to maintain a religious character of every place of worship as it existed at the time of independence. So it declares that कि जितने भी अपील, suits या proceedings है regarding converting the character of the place जो कि pending है कोर्ट के पास on 15th August 1947 will abate as soon as the law come into the force. Exemptions की बात करें तो obviously अयोध्या is exempted है. The act also does not apply to the ancient monument and the archaeological site remains act. ठीक है, तो ये यहाँ पे है. Then comes about the 8th schedule. आपको पता तो है ना शेड्यूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जैसे कि 7th शेड्यूल है, ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, दैट इज द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट. उसी तरह से यहाँ पे 8th शेड्यूल है which talk about the official languages. That means अभी क्या हुआ, जो उड़ीसा की कैबिनेट है उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारी जो कोई लैंग्वेज है, ठीक है, उसको यहाँ पे 8th शेड्यूल के अंदर लाया जाए. ठीक है, अब शेड्यूल 8 में अगर कोई लैंग्वेज होती है तो फायदा क्या मिलता है. पहला, गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट मिलता है डेवलप के लिए. रिकॉग्नाइजेशन मिलता है फ्रॉम द साहित्य अकेडमी एंड द वाइडर ट्रांसलेशन ऑफ इट्स बुक्स. कैन बी यूज्ड इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री डिबेट. कैन बी यूज्ड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड RBI to include it in the currency notes and denominations. तो शेड्यूल 8 जो है वो बोलता है it enlists the official language of the country and consists of 22 languages currently. 14 languages originally यहाँ पे include करी गई थी. 9th शेड्यूल जो कि आपके पास एक इम्यूनिटी देता है. जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था अंडर आर्टिकल 31B, तब 9th शेड्यूल को लेके आया गया था कि भाई एक इसके अंदर कोई भी लॉ है तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, बट बाद में इसको हटा दिया गया. राइट टू साइलेंस, चुप रहना. तो बेसिकली राइट टू साइलेंस जो है आपके पास एमिनेट होता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 से, which states that no one can be compelled to witness against the himself, कि खुद के खिलाफ आप जो है एविडेंस देने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता. एंड देन कम्स द रिजर्वेशन फॉर द लोकल्स इन द प्राइवेट सेक्टर, ये हम कर चुके हैं. ठीक, अफर्मेटिव एक्शन ये छोटे छोटे टॉपिक से यू कैन सी. नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, जो कि अगली वीडियो होगी, वो आपके पास ये पूरा जो पार्लियामेंट वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर होगी, यानी कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके ऊपर होगी. तो पहला जो प्रोविजन था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड था वो हम कर चुके हैं. सो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. सो वी मेक श्योर कि हम एक एक सेगमेंट को कवर करें. अगला सेगमेंट जो है कल की वीडियो में कवर करेंगे. सो अभी के लिए आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच. प्रीलिम्स आने वाला है. कीप प्रैक्टिसिंग द मॉक्स, keep practicing the objective questions as much as possible. वरना कुछ नहीं होने वाला. जितने ज्यादा questions practice करोगे उतना ज्यादा आपको confidence आएगा. ओके, तो कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच.